Hi guys, welcome to the first episode of Imposters. Long lost friends starting a new podcast together. Just to give you guys a context, how did we meet, Shubham? FIJC meet you by. Yeah, good days. Especially before it went all downhill after 12th standard. So, like just to ask you out of curiosity, what was your first impression of me? Because I think we met on the first day, or We did. I actually don't remember. I remember coming late. even I came late. Yeah, and the And teacher. because of one guy. I was basically waiting for a couple of my friends. Obviously. Don't want to take the name of the school. It's very embarrassing, but yeah, was waiting for a couple of friends, and Yeah. then we entered. No, because my first impression of you was Thapri. But because I think you recall. Won't deny. I had a mustache. I had a weird dressing sense. Won't deny. Yeah, you had that weird mustache, and those kind of clothes that you get on on the streets or something. Pushing it a bit, but okay. But yeah. No. But now look at you. We have come a long way. You have come a long way. I'm still as good as average looking. जो पहले था वो अभी भी मैं वही हूँ मेरे हिसाब से. And so you know what's up after 12th. After 12th, yeah. Pursuing the same course then drifting apart. CA चालू कैसे हुआ? यही 12th के बाद. Yeah. I think we were a group of 8-9 friends, and majority of you guys were planning to do CA. So I was like, भाई सभी ये कर रहे हैं, मैं क्यों ना करूँ? Don't pin it on us कि हमने बोला करने को. बोला नहीं, बट यही था ना कि ऐसे सब CA कर रहे हैं तो मैं भी करूँ, मैं क्यों पीछे छूट जाऊँ? Yeah. यही सीन था. So both of us got into the field. You did very well. Still doing very well. अब हो गया अभी क्या CA कर रहा हो गया. Company wise, work wise, you have completed your CA, which is an achievement. After my first attempt, I couldn't clear it, and I was like, भाई मेरे से नहीं हो रहा. But everyone was shocked, है ना back then. Like because when you clear, like when you couldn't clear, उस time I remember like speaking to some of my friends just a day before CPT, which is the first level of CA, and like I was very well prepared, and like other friends were calling कि नहीं. मैंने बोला हाँ अच्छा ये नहीं हुआ. मैंने बोला हाँ ये तो निखिल का भी नहीं हुआ. उससे एक बार बोलता है नहीं निखिल ऐसा बस स्कीम देता है, ऐसा लाइक पकाता है, वो तो पास हो जाएगा अच्छा मार्क्स से. एंड देन यू डिडंट क्लियर एंड लाइक हाँ सच बोल रहा था, इसका नहीं पढ़ के वो हुआ था. To be honest, yeah, you know, I have always been a bookworm, like a studious child. Even when I was a kid, I got good grades in 10, good grades in 12th as well. But यही था कि the only reason why I started thinking about doing CA was because of you guys. Like everyone in our group was doing CA. मेरे को ऐसा कुछ CA के बारे में पता नहीं था, ऐसा कुछ था नहीं. So I was like भाई सभी कर रहे हैं, मैं पीछे छूट जाऊंगा, तो मैं भी चालू करता हूँ CA करना. We started studying together, whatever, 3 months. Same classes. Same classes. And when we were studying, I realized what the hell am I doing? This is not what I want to do. This is just peer pressure. I'm just following the rat race because you guys are good at it. I am not. I'm genuinely not. I was not good at it. But you worked hard. You wanted to work hard for it, I right? just had to manage it through. See, there's a reason why we're trying this in the first place. Correct. नहीं होगा. कुछ और करके देखते हैं लाइफ में कुछ आगे अगर. But it's like if you are really interested, right? तेको start ही पता था कि मेरे को CA करना है. So you were actually willing to put that much efforts in. Yeah. मेरे दिमाग में कभी ये नहीं था कि मेरे को CA करना है. तो CPT के टाइम पे मैंने अभी एग्जाम के पैसे भर दिए, भर दिए, तो फिर यही था कि ठीक है, let's just start studying. We'll see how it goes. And when I was actually studying, first month पूरा दिन हम क्लासेस में रहते थे. और तुम लोग ऐसे थे कि तू तो ऐसा था कि घर पे आके ही पढ़ता था क्योंकि तो करना था. मैं घर पे आके सिर्फ करता था, मैं कौन पढ़ेगा, मेरे को नहीं पढ़ना है, 9 घंटे पढ़ रहा हूँ, घर पे आके भी पढ़ूँ. तो फिर उसके बाद यही था, मैं जब पढ़ाई पे घुसा तो यही था कि ठीक है अभी मेरे को लग नहीं रहा है कुछ होने वाला है, बट अभी दे दिया. एंड आई हैवंट टोल्ड दिस टू एनीवन. इट्स ऑब्वियसली नॉट एन एक्सक्यूज, बट आई हैवंट टोल्ड दिस टू एनीवन. बट व्हेन आई वाज गिविंग द एग्जाम, राइट, तो ऐसे नेगेटिव मार्किंग्स भी रहते हैं, और ऐसे अकाउंट में कुछ 40 क्वेश्चंस रहते थे तभी, वो ज़माने में जो भी था. आई लिटरली अटेम्प्टेड 20 एंड आई लेफ्ट द अदर 20. आई डिडंट इवन अटेम्प्ट. आता नहीं था कि मैं देखा ही नहीं, ये सीन था.
लाइक एग्जाम ही नहीं देना था आगे. क्योंकि मेरे को ये था कि अगर गलती से मैं पास हो गया ना तो मेरे को आगे का फेल्ड बाय व्हाट 5-6 मार्क्स ओनली. 2 मार्क्स 98. 98. अच्छा. तो ऐसा मेरे को ये 20 गलती से भी करेक्ट हो गया. ये तेरे पापा को दिखाना. नहीं, उनको तो पता ही है. लेकिन उनको जिस दिन मेरा रिजल्ट आया ना, ऐसे रिजल्ट कुछ 5 बजे आने वाला था, 5-6 बजे आने वाला था, तो मैंने पेरेंट्स को बोल के रखा कि शाम को रिजल्ट आएगा. बट मेरे फोन में मैंने देखा 1 बजे रिजल्ट आया. हाँ, 1 बजे मैंने देख लिया. तो obviously I felt bad because it was the first time I failed. Like I was good at it. मतलब पढ़ाई में अच्छा था. फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं फेल हो गया किसी चीज़ में. जबकि उनको पता था ये होने वाला है. बट When it hits you, right? It's a different feeling. तो फिर वो मैं बोला नहीं किसी को 1 घंटा कि ऐसा रिजल्ट आया. और मेरे पेरेंट्स भी एक्चुअली उनको पता नहीं था कि मैं किस फेज से जा रहा हूँ. सो उनको कोई आइडिया नहीं था कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं है ये नहीं. मैं किसी को बोला नहीं था कि वो लोग का भी एक्सपेक्टेशन रहता ना कि भाई बहुत पढ़ाकू बच्चा है, ये भी कर लेगा ऐसा था. तो फिर 1 घंटा 2 घंटा बोला नहीं मैंने. तो फिर ऐसे मॉम आके मेरी पूछी कि रिजल्ट कितने बजे आने वाला है. एंड आई जस्ट स्टार्ट क्राइंग. अच्छा. आई जस्ट स्टार्ट क्राइंग कि रिजल्ट आ गया. एंड आई डिडंट क्लियर इट. आई फेल्ड. आई नेवर शोड देम द मार्कशीट. दे डिडंट इवन आस्क फॉर इट. अच्छा. वाह. ऐसे मैं कभी बताया नहीं उनको मार्कशीट. दे वर लाइक ठीक है, व्हाटएवर, दिस इज द फर्स्ट टाइम इट्स हैपनिंग विद यू. वी नो यू वर ट्राइंग टू वर्क हार्ड. बट तो फिर मैं रात को डांट आए, बोला कि देखो मेरे को पता है कि देखो अगर करना रहता तो यू वुड हैव ट्राइड. बट ऐसे क्यों फिर, मतलब रीज़न क्या है कि देखो मेहनत नहीं की, एक्चुअली डिफिकल्ट था कि तो करना ही नहीं था. मैंने बोला मेरे को नहीं करना है. तो मैंने डांटने वाला देखो एक और अटेम्प्ट ट्राई करना है दिसंबर में होता है ना यूजुअली, वो कर ले, या तो अगर नहीं करना है तो छोड़ दे. मैंने मिठियार में एडमिशन ले लिया था. ठीक है, इन हाउस बीकॉम का एडमिशन ले लिया था. फिर वो सब हो गया था. फिर मैंने बोला कि नहीं मेरे को नहीं करना है. फिर तस्सी से बात की थी कभी. तो फिर उसने बोला कि राजा, यही था उसका, यही रिप्लाई था. पहले आया था. बट हाँ, मेरे को BMS पूछना था क्या चल रहा है, कैसा है BMS, कैसा कोर्स है. तो मैं उससे बात की, जिसने BMS ले लिया था. तो फिर हाँ, मैंने उसको बोला कि ठीक है BMS का आइडिया ले लिया. फिर मैंने बोला मैं BMS कर रहा हूँ. नेक्स्ट डे मैं मिठिया पे गया बात करने, प्रिंसिपल मतलब जो भी हो एडमिशन का. बोला इनाउंस तुमने ले लिया तो हम चेंज नहीं करा सकते, तुम्हारा जितना भी परसेंट हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, और तुमने इनाउंस किया तो हम स्ट्रीम नहीं चेंज करा सकते. तो फिर वो सब हुआ. उसके बाद मैं HR आ गया. एंड नाउ फाइनली यार स्टार्टिंग अ पॉडकास्ट टुगेदर. हाँ जी, मतलब I think shout out to Mr. Manoj Katara for understanding the reason why like everyone knows your dad's name is because you used to highlight it everywhere. Instagram username, like WhatsApp name, Sapphire username, Nikhil Manoj Katara. मतलब कौन आदमी है भाई, हर जगह पापा का नाम घुसेड़ता है. I think I was the only one doing it. हाँ, कोई नहीं करता यार. It's only like when it's only that you seen someone's आधार कार्ड और समथिंग जहाँ पापा का नाम है वो स्कूल के वो पेपर, वरना कोई नहीं बोलता हाँ आपका नाम क्या, निखिल मनोज कटारा. तो नहीं, बट एंड आई थिंक लाइक तो वन थिंग इज कि obviously like not having interest in that particular field and not doing it, and also is that somewhere also having sort of a blessing or a privilege, like in your case also, and obviously there's nothing wrong in that. I think that's a blessing only कि you were in a position that you could think of something else. Correct. And your parents also understanding, and also like from a financial standpoint, and that you could think of something else कि अच्छा I can Correct. do this. And like many people don't like have that, and that's what I can say pushes them कि like करना ही है, कुछ और ऑप्शन नहीं है, तुम बस कर कितना भी 4-5 साल निकले. So that for many people the driving factor is that you just do it. It is only better for you that you finish it as early as possible. वरना अटेम्प्ट लगता जाएगा, तुम ही पागल होते जाओगे, और एट द एंड ऑफ द डे लगेगा किधर फंस गए, क्लियर नहीं हो रहा, अटेम्प्ट लग रहा है. हाँ वही तो, मतलब आई कैन से दैट you made a right call. Correct. I'm actually very grateful for it. In a way, अगर मैं अटक जाता तो मेरे को 4-5 साल अटेम्प्ट देने पड़ते. मतलब कि and you've also grown a lot, personality wise. No, I know. I had no personality. वो तेरा डालना इसमें एडिट्स में तेरे वो ऐसे वैसे वाले फोटोज का जो तेरे स्कूल डेज फर्स्ट एपिसोड आई डोंट वांट पीपल टू जज मी. इट्स फाइन. ठीक है, ऐसा एटलीस्ट अभी ऐसा देख रहे होंगे, ऐसा तो पता होना चाहिए ना बंदा कहाँ से ग्रो हुआ है. so that happened, and ऐसा फिर eventually मतलब like you made it kind of very clear that you want to
for give it the best try as possible in this content world, or you know, तो मतलब कि you have really discovered yourself in that particular way and trying still to very sure. मतलब trying to Yeah. yeah, I agree. This is what I have been planning to do since a very long time, as you know. Since lockdown, I guess I have been planning to start something, but I have just been pushing it for whatever reason. Like I'm working as well in this industry, only advertising industry. I just didn't have that confidence to start it, or the willingness to actually tell myself ki okay, let's just start today. I have just been pushing it, and this is a period where I found someone who wants to do the same thing. I have been trying to find people who want to do this because I know it's very difficult for me to do it on my own. yeah, obviously. So Luckily, I found you, long lost friend. but for you, you're still unlucky that you haven't found a very extrovert friend. We'll make you extrovert, yeah. I was a bit extrovert until 12. मतलब not that मतलब socially extrovert in terms of social media. Just I just like to stay deactivated or post as less as possible. okay, right. In Mithiva, you were the most social person. If I'm not wrong, right? You At had least in our all- friend circle. Yeah. Yeah, you had so many friends. Like you used to talk to everyone. ऐसा नहीं था कि मैं ये बंदे से बात नहीं करूँगा, ये बंदे से बात नहीं करूँगा. कुछ थे एक्सेप्शनल केसेस, बट हाँ ऐसे तेरे केस में तो यू वर वेरी सोशल. जहाँ तक मेरे को पता 12 तक तो यू वर वेरी सोशल. Yeah, एंड आई वाज एन इंट्रोवर्ट एट दैट टाइम. Yeah, and at that time मतलब कि वो उस टाइम हाथ में टाइम था, हाँ प्लस सीए का प्रेशर बिल्ड नहीं हुआ था. हाँ. फिर एक बार वो बिल्ड होता गया हाँ. वीक में, लाइक ड्यूरिंग इंटर सीरीज और समथिंग, वीक में 7 days, 9 hours each, every Sunday tests. We used to stay in like in classes only. फिर वो ट्रेन से आना जाना घर आके वो routine बन गया. no energy left ना. फिर ठीक है, that CA circle grew a lot, but I was always somewhere in the middle where I was like okay, like good in studies and a bit smart, but obviously people were way smarter, and you realize कि बहुत अलग दुनिया है. For me, I consider you one of the smartest people I know. Not even saying it because you're doing a podcast with me. but अच्छा नहीं, मैं उठ के निकल जाता, तुम भी बुरा करता तो. नहीं, genuinely, whenever people ask me like तू किसके साथ podcast चालू कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, जैसे काफ़ी लोग ने पूछा कौन है ये, किससे मिला है, मैं ये बोलता हूँ कि ये बंदे ने इतना डेडिकेशन है कि मेरे को सिर्फ तू पता है कि 12th से ही तेरे को पता है तेरे को क्या करना है लाइफ में. जो भी है, मैं वैसे होते कुछ लोग होते जो करते हैं, बट तेरे दिमाग में वो था कि हाँ मेरे को सीए करना है 12th से ही, मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना कि ऐसे मैं एक और अटेम्प्ट दूँ, 2 अटेम्प्ट दूँ, लाइफ को थोड़ा लाइटली ले लूँ. ऐसा ऐसा भी नहीं था. हाँ. तेरे दिमाग दिमाग में ये था कि ठीक है मेरे को अभी सीए करना है, और मैं बैक टू बैक वो मेरे दिमाग में भी मेरी मम्मी ने डलवाया ज़बरदस्ती 11th-12th में. तो इसका सबसे फनी लाइक बैक स्टोरी, जो मैं बहुत इरिटेट होता हूँ एक पॉइंट पे. याद है 10th के बाद यू नो लाइक मॉम यूज्ड टू कन्विंस अलॉट, नहीं तू सीए कर ले, ये वो. हाँ. नहीं करना. तो एक पॉइंट के बाद वो भी भड़क जाती थी, अरे कि तू मेहनत से डरता है, मेरे को लगता है. और ईगो में आ गया, अरे मेहनत से मैं नहीं डरता, बस मेरे को नहीं करना तो नहीं करना. करेक्ट. तो फिर मैंने उनको बोला कि नहीं. फिर ऐसा आर्ग्यूमेंट होता था थोड़ा बहुत. फिर क्या हुआ कि मेरे एक कज़न सिस्टर ने, मेरी मॉम का फैमिली लाइक मतलब ऐसे बहुत क्लोज है एंड ऑल, तो मतलब मेरी मॉम की फिर भतीजी, उन्होंने सीए जस्ट कर लिया था. तो और मेरे को वो फेज था 11th स्टैंडर्ड में, जब मैं 3 पत्ती का बहुत शौकीन था. अपन ने 1-2 बार खेला रहेगा. हाँ. मैं 3 पत्ती का मतलब कोई बुला दे कि भाई चल 3 पत्ती खेलते हैं, मैं आके बैठ गया हूँ जुआरी है, चल खेलते हैं. तो क्या हुआ, मम्मी को पता था कि, और मेरी मम्मी गई थी नानी के वहाँ पर, और वही नानी के लाइक घर पे वो लोग भी आए हुए थे, मतलब जो मेरी मॉम के जो कज़न भाई एंड लाइक उनकी बेटी जिसने जो सीए कंप्लीट किया था. तो मेरे मामा का कॉल आया, मैं सो रहा था आफ्टरनून में अराउंड एट 3:30-4 o'clock. मेरे लाइक रियल मामा, लाइक मॉम के रियल भाई, वो बोलते क्या कर रहा है, मतलब सो रहा हूँ. तो बोलते अच्छा एक काम कर, आ जा इधर, लाइक जो सब कज़न मामा इन लोग आए, हम लोग 3 पत्ती ताश खेल रहे हैं. हाँ. आ जा. एंड आई लुक्ड एट द वॉच, मेरा 2 घंटे में टर्फ था. ठीक है. एंड आई वाज लाइक कि अरे टर्फ जाना है, एंड मतलब एंड दे स्टे इन कांदिवली. मतलब गोरेगांव से कांदिवली कैसे आऊँगा. फिर पता नहीं आ, चल ठीक है जाते, आधा पौना घंटा खेल लूँगा, फिर निकल जाऊँगा फिर से. और मैं नींद में था, लाइक हार्डली हाफ एन आवर सोए रहूँगा, तो उठ गया तो यू नो ना कि लाइक सर ऊपर दुखता है एंड ऑल दैट. बट ठीक है चल जाऊँगा, मूड हो. अगर मैं उधर कैसे भी लाइक पहुँचा कांदिवली, उधर बैठा हूँ, आगे वो तो कज़न मामा और वैसे बुआ थे, तो ऑब्वियसली दे आर लाइक कि अरे शुभम ये अपना दीदी जस्ट सीए बनी है, मतलब अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशंस. ऐसा फिर बैठाया, फिर कुछ नहीं, मतलब 3 पत्ती वगैरह का मतलब नामो निशान नहीं.
लाइक पत्ते भी नहीं रखे थे वहाँ पर, कुछ नहीं था उधर, मतलब एकदम ऐसा थोड़ा नॉर्मल ऐसा माहौल चल रहा है, एकदम सीरियस बातें हो रही है। फिर मेरे को मेरी दीदी के साथ रूम में बंद कर दिया कि, एंड ऑब्जेक्टिव ये था कि वो दीदी मेरे को कन्विंस करेगी सीए करने के लिए, रूम में बंद कर दिया। एंड अभी तो आई एम वेरी क्लोज यू नो विथ माई कजन सिस्टर। एट दैट टाइम आई वॉज ऑल्सो लाइक 15-16, तो लाइक मैं उतना फ्री नहीं था उनके साथ, और मैं क्या बात करूँ, मैं नींद से उठ के आया हूँ, झूठ बोला आप लोग ने, रूम में बंद कर दिया कि से बात करो, और दीदी भी कुछ बोल नहीं पा रही है, थोड़ा बोली। फिर मैं एक पॉइंट के बाद बोला दीदी सॉरी मैं आज नहीं हो सकता मेरे से, मैं नींद से उठ के आया हूँ, मेरे से झूठ बोला गया है, मेरे को टर्फ के लिए लेट हो रहा है, मेरे को जाने दो प्लीज़। और मैं इतना इरिटेट हो गया, मैंने बोला क्योंकि आपके फेवरेट थिंग के साथ झूठ बोला गया, 3 पत्ती खेल रहा है नींद से उठा के और वो भी सीए के बारे में कन्विंस करने के लिए। और मैं मम्मी को बोल रहा हूँ, मम्मी यार अब कहाँ तक इतना झूठ बोलने लग गया अभी आप मेरे से, कि आप ऐसे झूठ बोल के 3 पत्ती के लिए, और आपको पता है इसका वीक पॉइंट 3 पत्ती है आज की तारीख में 3 पत्ती के लिए बुला ली। तो फिर बुला ली, बैठे उधर, फिर मैंने बोला मम्मी को, मम्मी जा रहा हूँ, मेरा टर्फ का टाइम हो रहा है। एंड यू अज्यूम कि मैं शायद से या तो कुछ तो बस से या ट्रेन से जाऊँगा, और मैं लेक्चर जाता हूँ। बोला नहीं मैं नहीं जाऊँगा बस से, मेरे को ऑटो का पैसा दो, मैं ऑटो से जा रहा हूँ। आई कैन टेक दिस डे एनी मोर, मेरे को जाके बस खेलना है, तब जाके शांत होऊंगा मैं। तो यू नो ऐसे सब एंड लाइक फिर घर पे जो भी रिलेटिव आते थे उन लोग भी कन्विंस कर देते, लाइक चलो वो दीदी कन्विंस करने का ट्राई करी थी, शीज़ा सी है तो ठीक है, एक पॉइंट समझता हूँ। कितने सारे रिलेटिव्स डोंट नो लाइक ऑलमोस्ट 10% अबाउट सीए, ठीक है उन लोग कन्विंस करते थे। मेरा ओनली प्रॉब्लम वॉज दैट, अरे आपको खुद को पता है क्या लेवल होता है ये, नहीं तुम्हारा बहुत रिस्पेक्ट है, नहीं आई अंडरस्टैंड योर यू नो पर्सपेक्टिव, अच्छे फेथ में बोल रहे हो, बट सामने वाले को पता है ना कि आपको फुल नॉलेज नहीं है, आप हाफ नॉलेज से बोल रहे हो, तो आपको तो ऐसा लगता है कि जैसे ये सामने वाला ना ऐसे लाइक दिल से नहीं बोल रहा है, थोड़ा टाल रहा है, या मतलब ऐसे कि मेरी मम्मी ने बोला बस कन्विंस करो मेरे बेटे को, तो ऑल दैट। फिर ठीक है, फिर हो गया था, बट हाँ वो था, हो गया था, सेट हो गया था। टिपिकल ऐसे इंडियन फैमिली बिहेवियर राइट, दे हैव अ फ्यू थिंग्स इन देम, ये इंजीनियरिंग, सीए और ऐसे एक और फील्ड। सीए भी क्योंकि मैं मतलब मेरे फैमिली में ऑनेस्टली कोई इतना लाइक इमीडिएट फैमिली में लाइक नो वन इज़ दैट एजुकेटेड, तो मतलब क्योंकि आजकल मतलब माई मॉम सेज दिस कि व्हेन शी वाज यंग, ऑल आवर ब्रदर्स एंड इवन माई फादर एंड एवरीवन, वो जनरेशन में बहुत लाइक कम लोग कोई ऐसा कोई प्रोफेशनल कोर्स या कुछ करते थे, सबके लाइक फादर्स का बिजनेस होता था एंड दे यूज्ड टू डू दैट। तो अभी आज जाके बहुत एजुकेशन के लिए लोग बहुत वो हो गए कि हाँ एक ये मास्टर्स करना है, एक कोई प्रोफेशनल डिग्री करना है, बाहर जाना है, ये करना है। तो शी वांटेड कि हाँ तुम ऐसा एक करो, प्लस ऑल्सो वो सम लाइक अदर ऑब्वियसली अदर कॉलेजेस ऑल्सो लाइक हैड अदर कोर्सेज बट विच वर एक्सपेंसिव एट दैट टाइम। तो मेरी मम्मी को उतना समझ नहीं रहा था कि इसमें इसको कितना मतलब क्या ROI क्या हो सकता है एंड दिस दैट एंड ऑब्वियसली नो लाइज इन दैट कि सीए कर लिया तो एक सेफ्टी नेट, सबसे बड़ा सेफ्टी नेट है लाइफ में। करेक्ट। तो वो उनको सेफ्टी नेट बहुत पसंद था कि मेरा बेटा का लाइक कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, ये मतलब ठीक है फिर कर लो, ठीक है। फिर वो 4.5 years फुल ऐसा अप एंड डाउन, इट वाज वर्थ इट। हाँ और ठीक है, बाल झड़ गए, बीच में पेट आ गया था बट ठीक है, सोशल स्किल्स तो ज़ीरो ही हो गए थे। आज पता नहीं लड़कियों को मेरे को कैसे मैसेज करते हैं स्किल्स नहीं अब मेरे में, बट ठीक है वो तो तेरे से सीखना पड़ेगा मेरे को। पर ठीक है, अभी ये फील्ड में आ ही गए, हम सीख लेंगे। बट ड्रास्टिक चेंज, why did you actually decide to start a podcast? I mean, be a part of this podcast from having this crazy journey of CA, start working so hard for 4.5 years, अभी भी चालू है, still working so hard. CFA and all Correct. that. Then CFA is going. what was the reason for you switching? I just wanted to like try something new. I just had this belief कि I may be like good at conversations and just talking because like everyone who knows me well or I'm comfortable with them, like more or less if you ask me about them they'll say one thing कि बस बोलता रहता है कुछ, बोलता बहुत है, हाँ, हाँ, बोलता रहता है, agree. कुछ ना कुछ बोलता रहता है, फ़ोन करता है तो फ़ोन नहीं रखता, बोलता रहता है कुछ ना कुछ यहाँ वहाँ की बातें, ऐसा ऑफन फ़ोन नहीं करता किसी को, पर कभी महीने में एक बार फ़ोन किया तो पूरे साल का अपडेट हो जाता है। महीने में मतलब काफ़ी बार तो मैं भी बता देता हूँ मैंने ये सब किया, काफ़ी बार सामने वाले को जानबूझ के और क्या, अच्छा यहाँ पर क्या किया, यहाँ क्या किया,
अभी कल ही फ्रेंड से बात कर रहा था, वो बता रहा था उसके बाप ने उसको बहुत मारा एक बार। तो मैं ये भी पूछने लग गया, अच्छा देखो किससे, बेल्ट से मारा, किससे मारा, हाथ से मारा, ये कौन बेल्ट से, डंडी से, किससे मारा? उतना मैं डेप्थ में जाना चाहता हूँ उतना वो थोड़ा ऐसे अंदर से थोड़ा वो पंचायती वाला है, बल्कि नॉट इन द सेंस कि मेरे को जाके बातें फैलानी है, वो ठीक है, वो स्कूल वाले में एक फेज़ होता है जब आप बात फैला देते हो, उसके बाद नहीं मैं करता ये सब। बट हाँ, टू जस्ट गेट एन टू जस्ट गेट अ फ्लेवर ऑफ इट कि हाँ भाई क्या हुआ पूरे सिनेरियो में, मैं ऐसे विजुअलाइज करता हूँ। वो मैं बोल रहा था ना, हाँ लाइक पप्पा ने मारा, मैं थोड़ा क्या मारा रहेगा यार लाल कर दिया रहेगा बेचारे को। अच्छा, you are a very curious person as far as I know, and you know how to maintain friendships. That is what I'm going to. That is what I know about you. You know how to maintain friendships. Even if I don't call you for a year, it won't be awkward with you. Even if we meet suddenly, it won't be awkward for us कि हाँ शुभम यार एक साल बाद मिल रहे मैं क्या ही बात करूँ। हाँ, ऐसा नहीं होता है। नहीं मतलब बहुत ऐसा नहीं है, मतलब मेरा लाइक फिर मेजॉरिटी के साथ ऐसा नहीं है। लाइक जिनके साथ उतना अच्छा नहीं है वो तो पहले एस्टैब्लिश्ड है कि उतना अच्छा नहीं है, और लाइक उनसे कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है कि ठीक है पहले लाइक कुछ होगा तो होगा, फिर आधे एक साल बाद सब भूल जाते हैं, और उसके बाद कोई मिलेगा भी तो हाय हेलो एक्सचेंज होता है, उससे ज़्यादा क्या मतलब कुछ रख के मतलब है नहीं अंदर, वो सब पहले सब पेटीनेस रहता है। उसके बाद वही ना कि सब मैच्योर, और लाइक इन माय केस तो आई ऑब्वियसली से दिस, आई मैच्योर्ड आई थिंक 2-3 years अर्लियर देन एवरीवन एल्स। लाइक द मैच्योरिटी आई गॉट एट 18-19, मतलब जस्ट दैट इमोशनल मैच्योरिटी आई गॉट एट 18-19, मे बी माई पीयर्स लाइक गॉट इट एट 21-22। तो मैं वैसे ही ऐसा लगता है मेरे को, मैं लाइक ऑब्वियसली ऑफ द सर्कमस्टेंसेस आई ग्रू इन एंड बीइंग द एल्डर सिबलिंग एंड दिस CA जर्नी एंड दिस फैमिली प्रो एंड एवरीथिंग, तो इसलिए वो फिर जेलन होने में इतना मतलब काफ़ी बार एक पॉइंट के बाद वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता था, क्योंकि मेरे को बहुत चीज़ें सब बचकान लग जाती थी कि ये तो बचकानी चीज़ें यार, क्या करते हैं आजकल इन लोग। ये जो तेरा फेज 18-19 में हुआ था, मैं रिसेंटली 1-2 साल पहले मेरा बोलते हैं ना मैच्योरिटी, 2 साल पहले मेरे को ये ठीक है पर्सनालिटी मेरी डेवलप हो रही थी। मिठी भाई को HR, मैं जब दूसरे कॉलेज में HR कॉलेज में गया तब ठीक है आई मेट सर्टेन सेट ऑफ पीपल, आई मेड अ सर्टेन सेट ऑफ फ्रेंड्स, तो पर्सनालिटी बेस्ड ऑन माई फ्रेंड्स, बेस्ड ऑन द पीपल दैट आई वाज हैंगिंग आउट विद, उसके हिसाब से वो डेवलप हो ही गई। बट ये जो बोलते हैं ना मैच्योरिटी है 2-3 साल पहले की, मैं जैसे तेरे को पता है, I was planning to go abroad to study, right? It's the new thing in the market right now. कि ठीक है 1 साल काम करो, abroad चले जाओ और ये डिग्री ले लो। So ये मेरा भी रिसेंटली फेज चालू था कि what should I actually do? जहाँ तक तेरे को पता है मैंने एक कंट्री के लिए अप्लाई कर दिया था, I applied to a few colleges, मेरे को ऑफर भी आ गया था, ये कुछ महीने पहले की बात है। I was actually going to go next month. तो ऐसे एक रात पहले मैं बहुत सोचा जो भी हुआ ना, लाइक ठीक है I don't want to follow this rat race. Shout out to Mr. Katara again. He has been very helpful. मैं इमेजिन कर रहा हूँ मेरा बच्चा होता, निकल चल, इतना मेहनत कराया, काउंसलर के पास लेके गया तो मेरे को, और अब बोलते नहीं जाएगा। I am actually very grateful for them. They have been with me throughout जो भी सिचुएशन हो, बिकॉज मैं वैसा पढ़ाकू बच्चा रहा हूँ और मैं सडनली ऐसे ड्रास्टिक चेंज कर रहा हूँ कि भाई एडवर्टाइजिंग फील्ड में आ गया, क्रिएटिव फील्ड में, और ये पॉडकास्ट, सोशल मीडिया, सो इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट टू वॉट आई वॉज अ फ्यू ईयर्स अगो, राइट? तो फिर ऐसे सडनली आई एम लाइक ठीक है मेरे को ये करना है, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि ठीक है आई एम गोइंग टू डू वॉट आई वॉन्ट, आई एम नॉट गोइंग टू बी स्कैर्ड ऑफ इट एनी मोर। द मेन रीजन वॉज फियर. This is not a very stable industry, right? Because anything can happen. तो 2 साल बाद ऐसे कुछ भी बंद हो जाए, भरोसा नहीं है. It's not stable as such. जैसे तूने बोला CA is a very stable industry कि कुछ भी हो जाए, इतना पता है कि मैं ऐसे हाँ जॉब हो जाएगा, certain salary मिल ही जाएगी, ऐसा है. तो फिर but still I took that call कि ठीक है मेरे को ये करना ही है. I have to have the balls to do something else rather than just keep following everyone else. Same mistake I made CA के टाइम पे, I don't want to make the same mistake again. कि मैं CA के टाइम पे भी जब फॉलो करा थे सब फॉलो करे थे, फिर halfway through I realized कि मैं क्या कर रहा हूँ. And obviously abroad तो like 2-3 साल बाद भी जा ही सकता है. Exactly. If this doesn't work out, which it will, I will make it work. But हाँ ऐसे अगर नहीं हुआ, कुछ भी हुआ तो फिर हाँ I have an option to go. और plus I'm working as well. This is not something that I'm doing full time. This is my passion which I'm following and I'm working as well. Yeah, मतलब I like I'm just visualizing, putting myself in your shoes and just thinking कि like if I was supposed to go outside like abroad outside India और मैं नहीं like गया होता, सबसे ज़्यादा दुखी पता कौन होता? पेरेंट्स. कि हाँ कि मैं नहीं गया.
मेरी मॉम और मेरा भाई, दे वुड बी द सैडेस्ट। अभी बोलते रहे तो तू निकल घर से तू कहीं ना कहीं जा तेरे को इंडिया के कोई भी कोने में जॉब मिलता तू ले ले, तू घर से निकल क्योंकि अब तो घर में इतने कलेश होते हैं ना, सुबह उठते से रात के शाम तक, क्योंकि लाइक देयर आर 2 young boys. Correct, you have a sibling as well. Yeah, I'm about to turn 23. My elder brother will turn 20. My younger brother will turn 20 now. तो अभी ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि मैं 15 का हूँ, वो 11-12 का है, तो मैं जो बोलूँगा वो मान लेगा या ऐसा कुछ। अभी मतलब मैंने कुछ भी बोला उसके लिए तो ऐसा है कि ये टांग अड़ाता है मेरे बीच में, मैं उल्टा ही करूँगा। और एंड I know you're a single child, but parents always, especially moms, always have this tendency to be a bit biased or to love their younger children more. It's the duty of the elder child to protect the younger child, so they love the younger child more. That is what I feel. No, मतलब एक पॉइंट की बात भी, मतलब मैंने कुछ नहीं किया ना, मम्मी नहीं तू नहीं किया, मेरे को मालूम है तू नहीं किया, मतलब मैं नहीं किया मैंने कुछ नहीं किया, एंड मैं कुछ भी करूँगा वो चिल्ला देगा मम्मी वो भैया है ये भैया वो। मैंने बोला अरे ये दोनों माँ बेटे मिल के बैंड बजा देंगे तो इसलिए बोलते रहते हैं हाँ भाई तेरे को जब भी जॉब मिले, मैं बोलता हाँ मैं भी वेट कर रहा हूँ, इकोनॉमी ख़राब है, जॉब मिल नहीं रही है मतलब लाइक अभी जॉब है, यहाँ पर जॉब मिल रही है मुंबई में, बाहर नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली सब अपने लाइक सेम स्टेट या सेम सिटी वालों को ही लाइक करेंगे ना, उनको वो सब वो रेंट का उतना नहीं अभी जाए कभी भी मिलेगा ना, निकल जाना शांति से, सबको शांति हो जाएगी हाँ तो ऐसा सब लाइक बैंटर तो चलता ही रहता है। एंड आई जस्ट लाइक वांट टू like put it out there, like I don't know if anyone is going to watch this, but if you're watching this and by chance if you're a younger sibling अगर कोई है पता नहीं, तो you know if you feel कि you know you are like traumatized, too much family pressure, you know, and like career pressure and like family trauma is getting passed on and like all these generational issues, right? वो कुछ नहीं है, तुम तक कुछ नहीं है वो सब तुम्हारे बड़े भाई बहन के पास चला गया है। सो आई थिंक दैट जो भी बोलते हैं आजकल लाइक डेली लू वेलो अगर सिंपल बोलूँ, यू जस्ट स्कैमिंग योर सेल्फ, तुम खुद के साथ ये स्कैम कर रहे हो। सो बी ग्रेटफुल टू योर एल्डर सिबलिंग प्लीज। स्कैम से बस मैं सोच रहा हूँ मेरा भाई देख ले अच्छा हुआ तुझे स्कैम की बात करी, स्कैम से मेरे को याद है, मैंने तो कोई शायद स्टोरी बोली हुई है पहले भी कि अ कपल ऑफ ईयर्स अगो मेरे साथ ऐसे ऑनलाइन स्कैम हुआ था। जीपे बोला है जीपे याद नहीं। बेसिकली आई डोंट वांट टू गेट जज्ड बट ठीक है, आई से इट वाज माय मिस्टेक, आई मेड अ वेरी स्टूपिड मिस्टेक बट या आई वाज बेसिकली इन अ मीटिंग। ठीक है, मैं काम कर रहा था, मेरा मीटिंग चालू था, कोई ब्रांड के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो अच्छा खासा मीटिंग चालू था, 5-6 लोग बैठे थे। सो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ रैंडम स्ट्रेंजर, ओके, सेइंग हे मैंने आपकी मम्मी से बात की है, मेरे को उनको मतलब मेरी वाइफ को आपकी मम्मी को पैसे देने थे, तो मेरी मम्मी ने आपकी मम्मी ने बोला है कि मैं आपसे बात कर लूँ। मैंने बोला ठीक है, लेट मी जस्ट चेक विद माई मॉम एंड गेट बैक टू यू। मैंने फ़ोन रखा, मैं मीटिंग से थोड़ा बाहर आ गया क्योंकि मेरे को मॉम से, क्योंकि वो बहुत पेस्टर कर रहा था कि अभी बाद में नहीं मिलेंगे वॉट एवर। सो आई कॉल्ड माई मॉम सेइंग कि आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ रैंडम गाय, दिस इज हिज नेम एंड ही इज़ टेलिंग मी दैट ही नीड्स टू पे अस एक्स अमाउंट ऑफ मनी। माई मॉम वाज लाइक हाँ, मतलब मेरी दोस्त को मेरे को पैसे देने थे, तो उसने मेरे को पहले ही बोला था कि मेरा हस्बैंड आपको पे कर देगा, तो मेरे पास जीपे नहीं है तो मैं तेरा जीपे दे रही हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला जेन्युइन है ना, मतलब ये एक्चुअली बंदा वही है ना, तो मेरी मॉम ने बोला हाँ ये वही है, बात वही फ़ोन करा तो वही होगा क्योंकि और किसी को इसके बारे में पता नहीं है। सो आई कॉल दैट गाय, लाइक हाँ कि मेरे को पैसे देने, मेरी मॉम से बात हो गई। सो ही टुक माई मॉम्स नेम, ही टुक माई डैड्स नेम, ही बेसिकली न्यू द एंटायर स्टोरी। स्टोरी वॉज मेरी मॉम की फ्रेंड को, मेरी मॉम को कुछ पैसे रिटर्न करने थे, तो मेरी मॉम की फ्रेंड ने बोला कि मैं देखो मेरा हस्बैंड पे कर देगा। सो इधर से ये पता नहीं उसको स्टोरी कहाँ से मिल गई। सो अगेन आई वाज इन द मीटिंग, आई कॉल्ड हिम बैक सेइंग कि हाँ यू कैन जीपे मी, दिस इज़ माई नंबर वॉट एवर। उन्होंने नहीं फ़ोन मत रखो, ये मेरे को जीपे करना है, तो मैं आपको फ़ोन पे ही रहो, होल्ड करो, मैं आपको बोलता हूँ कैसे करना है। सो अगेन आई वाज इन अ मीटिंग, आई लेफ्ट द रूम, आई वाज लाइक भैया जल्दी करो जो भी करना है। तो उसने बोला मैं आपको 1 रुपये का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, उसने रिक्वेस्ट नहीं बोला, उसने बोला मैं 1 रुपया भेज रहा हूँ, आप जैसे ही एक्सेप्ट करोगे ना तो आपके अकाउंट में 1 रुपया आ जाएगा। तो मैंने इट फेल्ट डाइसी टू मी, बट हिज स्टोरी मेड सेंस
द एंटायर बैकग्राउंड मेड सेंस कि रैंडम बंदा को कैसे पता है ये सब. एंड द अमाउंट वॉज रीजनेबल, इट वॉजंट लेस, इट वॉज अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी विच वी हैड टू गेट बैक. तो मैंने बोला ठीक है ये पहले ट्राई करते हैं, अगर हुआ तो ठीक है, वरना आप मेरे ID UPI ID तो उस पर ही करो. तो उसने बोला नहीं मेरे को यही आता है, मैं इस पर ही करूँगा. तो हुआ, मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया तो मेरे अकाउंट में 1 रुपये आ गए, बट मेरे अकाउंट से 1 रुपये डेबिट भी हुए, ये मेरे को पता नहीं चला. तो बेसिकली उसने मैंने एक्सेप्ट किया. बेसिकली वॉज आस्किंग रिक्वेस्ट टू सेंड द मनी. बेसिकली आई हैड टू सेंड हिम मनी. तो मैंने एक्सेप्ट किया रिक्वेस्ट और उसने दूसरे अकाउंट से सेम टाइम पे मेरे को 1 रुपया भेजा. तो मेरे जीपे पे आया कि आई हैव रिसीव्ड 1 रुपीज़. ये आया तो मेरे को लगा ठीक है दिस इज जेन्युइन. एंड दैट टाइम आई डिडंट रियलाइज बिकॉज अ लॉट वाज हैपनिंग. तो वो 1 रुपये डेबिट का वो क्या नोटिफिकेशन नहीं आया, खाली बस क्रेडिट का नोटिफिकेशन आया? क्रेडिट का नोटिफिकेशन आया, डेबिट का नोटिफिकेशन मेरे को आया नहीं. आई डोंट रिमेंबर बट लेट आया होगा, ऐसे कुछ तो था. मेरे को ऑन द स्पॉट वो नोटिफिकेशन नहीं आया. तो मेरे को लगा कि ठीक है उसने मेरे को 1 रुपये भेजे मेरे अकाउंट से, तभी कुछ नहीं निकला है. तो देन ही सेंट अनदर रिक्वेस्ट, वो एक्स अमाउंट का रिक्वेस्ट उसने मेरे को भेजा. तो मैंने बोला ठीक है, इट हैज़ वर्कड, आई ट्राइड इट, इट इज़ वर्किंग, माइट एज वेल डू इट बिकॉज आई नीड टू रश. मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया. दिस टाइम द मनी वेंट आउट ऑफ माई अकाउंट बट दैट गाय डिडंट सेंड द मनी बैक फ्रॉम द अदर अकाउंट. तब मेरे को समझा कि ठीक है मैंने तो पैसे भेज दिए बट उसने सेम टाइम पे पैसे दिए नहीं मेरे को. तो मैंने वो जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया वो पे का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया था. मेरे को रिसीव का ऐसे रिक्वेस्ट होता नहीं है. तो मैंने पिन डाल के पे कर दिया और वो सेकेंड टाइम उसके अकाउंट से पैसे नहीं आए. मैंने बोला ये क्या होगा. तो आई कॉल्ड हिम अगेन. उसने वो अच्छे से बात कर रहा है कि वो बोला ठीक है, अरे सॉरी गलती हो गई, ये कुछ इशू हो गया होगा, आपका कोई और UPI ID है तो बताओ ये है. तो उसने मेरे UPI ID का सामने से नाम ले लिया. तब मेरे को डाउट हुआ कि इसको मेरे दोनों UPI ID कैसे पता है. तो मैंने फ़ोन कट कर दिया. फिर मैं गए मेरे को अंदर बुला रहे थे, मैं अंदर चले गया. देन माई डैड कॉल्ड कि मेरे को ऐसा कोई कॉल आया और मैं भी सेम करने वाला था बट मेरा बैंक का सर्वर डाउन था, इसलिए मेरा पैसा गया नहीं. फिर उसके बाद उसने बोला आपके 4 और अकाउंट लिंक्ड है ना, कोई भी अकाउंट से भेज लो. तब मेरे को पता चला कि ये बंदा स्कैमर है, इसको कैसे पता मेरे 4 और अकाउंट लिंक है. तो मेरे डैड ने कॉल किया कि बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना. आई एम लाइक ब्रदर इट्स टू लेट, द मनी इज ऑलरेडी गॉन. Shout out to Mr. Katara for being a sport all that time. Manoj uncle, I wish you could adopt me someday. It is not my fault. My dad also made the same mistake, okay? He made the same mistake. But luckily his server was down. That is the reason why the money didn't go. हाँ. तो फिर हम पुलिस स्टेशन में, मैंने कॉल किया उसको फिर से. That guy is picking up the call again. He's like हाँ निखिल जी बोलिए ना. निखिल जी. निखिल जी इतना रिस्पेक्ट, पैसे लेने के बाद रिस्पेक्ट दे रहा था. तो रिस्पेक्ट देगा ही ना, पैसे ले रहा है तो. वो निखिल जी पैसे भेज दीजिए, मैं आप गलती से मैंने आपको दे दिया, दूसरा अकाउंट बताइए ना मैं आपको भेजता हूँ पैसे. मैंने बोला नहीं मैं नहीं भेज रहा हूँ, पुलिस कंप्लेंट कर रहा हूँ. नहीं ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ मेरे से गलती हुई है. बंदा इज टॉकिंग वेरी रिस्पेक्टफुली. मैंने कॉल कट कर दिया. फिर मैं गया पुलिस स्टेशन. मैं उधर गया, फिर मैंने पुलिस को बोला ये सब. तो मैंने उसका नंबर सेव करके रखा था. मैंने पुलिस वालों को बोला कि ये सीन हुआ है. तो पुलिस वाले ने बोला देखो बेटा कल मेरे पास सेम सीन हुआ है बट ये जिसके साथ हुआ तो बैंक का मैनेजर था, तो उसके साथ हो सकता है किसी के साथ हो सकता है और उसको भी पैसे नहीं मिलने वाले. तुम्हें पैसे नहीं मिलने वाले. तो मैंने बोला वो मेरा फ़ोन उठा रहा है, आप ही एक बार बात कर लो. मैं फ़ोन लगाया, 3 ऑफिसर्स बैठे थे ठीक है. मैंने फ़ोन लगाया. हाँ मैंने बोला उसने उठाया फ़ोन. मैंने बोला मेरे पैसे कहाँ हैं. मैं पुलिस के सामने बैठा हूँ. अच्छा पुलिस के सामने बैठे हो, आपको जो करना है करो, मैं आपको पैसे नहीं दे रहा. 3 पुलिस ऑफिसर्स के सामने ही बोल रहा है. पुलिस वाला मेरे को बोलता है हाँ भाई फ़ोन रख दे, हम कुछ भी नहीं कर सकते. तो फिर ये रिसर्च हुआ, वो FIR लिखा है, उन्होंने फ़ोन नंबर ट्रेस किया. उसका नंबर किधर और का है, कोई वेस्ट बंगाल का है, अकाउंट कोई और का है. मेरे को पुलिस वाले ने बोला ये सेम चीज़ ना हमारे पास हर हफ्ते आती है. कल लेजिट बैंक मैनेजर के साथ हुआ. उसके जैसे उसके चोर के पास पैसे आए ना, उसने 4 अलग अलग अकाउंट से पैसे निकाल के बांट दिए. तो हमें बंदा भी मिल गया ना तो भी पैसे नहीं मिलेंगे. तो मेरे को पुलिस वाले ने सीधा बोला अगर वो बंदा मुंबई का होता ना हम भी 2 मिनट में उसको उठा के इधर लेके आते. बट ये बंदा ही किधर और का है, तो फिर उसका वो पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट करो, ये करो. तो ऐसे ऑनलाइन स्कैम. बैंक का मैनेजर सेफ नहीं है भाई. तो ऑनलाइन स्कैम भी हो गया. मैं क्या and like would you like to throw some color on this X amount? I don't want to. I am happy. I don't want to. I have moved on in life. Because it was my money, it was not my Father's money. It was my hard-earned money. हाँ. So even he wasn't very pissed कि हाँ ठीक है तेरी पैसे तू कमा लेगा. मैं सुनना नहीं पड़ा मेरे को. पैसे चले जाते तो फिर मेरे को और सुनना पड़ता.
तेरी पैसे कमा उड़ा, हमें क्या करना है। बात तो सही है बट मनोज अंकल आई एम अ बिग फैन क्योंकि मैं इमेजिन कर रहा हूँ अगर मैं कर देता ना ऐसा, मेरी मम्मी तेरे को पैसे डुबाने ही है तो मेरे को दे देना, मेरे को घर में नया एसी लेना था, मैं तेरे को कब से बोलूँ बेटा एसी चाहिए मेरे को तो उस कैमर को पैसे बांट रहा है, जब चाहिए होता है नया प्रोटीन का डब्बा ले आता है खुद के लिए। नहीं अच्छा है, स्वीट। Like I mentioned, I have another robbery story, but this didn't happen with me. It happened with my friend. So basically, this was a couple of years ago, 3 years ago. I was doing an internship. It was a youth-run organization, so everyone over there was of my age. Everyone is young, around 20, 21, 19, 20. So we had a conference, okay? And we went to Lonavala for that conference. So we were about 35 people, and everyone was young, and we had a good time. Basically it was party, so it was a 3-day long conference. Party correct. तो कॉन्फ्रेंस में ऐसे सेशंस थे एवरी डे. सो थर्ड डे पे ना एक सेशन था जिसपे वो विला में देयर वाज अ स्विमिंग पूल. सो देयर वाज सम अनाउंसमेंट एंड पीपल वर जस्ट पुशिंग पीपल इनटू द स्विमिंग पूल. ऐसा कुछ तो चल रहा था एंड इट वाज वेरी सडन. तो फिर एक हॉल था जहाँ हमारा कॉन्वर्सेशन होता था, कॉन्फ्रेंस होता था हमें हमेशा. तो फिर उधर ना वी बेसिकली केप्ट आवर फोन्स वॉचेस बिकॉज सडनली बुला दिया था तो हम नीचे चले गए थे. तो उधर मैंने अपना फ़ोन इधर रखा, मेरा एप्पल वॉच इधर रखा. बेसिकली आई गेव इट टू अ फ्रेंड एंड द फ्रेंड वेंट अप एंड केप्ट इट. सो मेरा आईफोन पड़ा था, मेरा एप्पल वॉच पड़ा था और मेरे फ्रेंड के पास भी सेम फ़ोन था. तीनों लाइन में पड़े थे और 2-3 और फोन पड़े थे. सो वी वेंट डाउन, वी हैड अ गुड टाइम, पीपल वर डूइंग रैंडम शिट, पुशिंग ईच अदर, कुछ तो हो रहा था. और फिर 1-2 घंटे बाद हम ऊपर आए एंड द एंटायर विला वॉज फॉर अस. हमने पूरा विला बुक किया था, तो ऐसा नहीं कि कोई बाहर का इंसान आ गया और ऐसे और 2-3 लोग रह रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था. रैंडम कोई नहीं था, हम 35 लोगों का ग्रुप था. सो वी केम अप, तो एक जन का आईफोन मिसिंग था. अब मेरा और मेरे दोस्त का आईफोन सेम था, बट लकीली वो बंदे ने बीच वाला आईफोन उठा जो मेरा नहीं था. मेरा एप्पल वॉच ही पड़ा था. अगर वो चल रहा है तो वो ट्रैक करना इजी नहीं होता. वो चुराया तो गया था. सो इट हैपेंड सडनली दैट गाय वाज पैनिकिंग, कहाँ गया, कौन ले सकता है, कोई बाहर का आया. सो वी वेंट एवरीवेयर, सबसे पूछा, स्टाफ वाफ से पूछा, जो भी था. फिर रात को वी चेक्ड एवरीवन्स बैग्स. हम ऐसे कॉन्फ्रेंस था, इंटर्नशिप के नाम पे पार्टी कर रहे थे, तो हमारा एक कमेटी था. सो वी चेक्ड एवरीवन्स बैग्स. कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ. ठीक है, तो वी गेव अप. दैट गाय वेंट टू द पुलिस स्टेशन. नेक्स्ट डे हम फिर से मुंबई चले गए थे. वो पुलिस स्टेशन में जो भी कंप्लेंट लिखा के आया, उधर लोनावला में कोऑर्डिनेट करा था. पुलिस वाला भी बोला था कि कोई बाहर का ही नहीं आया तो कौन किससे ले सकता. तुमने चेकिंग वेकिंग भी कर ली, जो भी हो गया, FIR कर लिया, कुछ हुआ नहीं. देन दैट गाय आफ्टर अ मंथ और सो, ओके, ही रैंडमली स्टार्टेड लुकिंग एट ऑल द पिक्चर्स. तो अपने फ़ोन के सब पिक्चर्स ढूंढने जा रहा था. तो फिर वो देख रहा था कि कहाँ के पिक्चर, बेसिकली वो जो हम सेशन चालू था ना स्विमिंग पूल पे और वो सब हॉल पे, तो सब पिक्चर्स दिख रहा था कि स्विमिंग पूल के एरिया में कौन मिसिंग है, जो किसी और ने खींचे थे अपने फोन से. करेक्ट. तो ऐसे सबके फोटोज खींचे थे, ग्रुप पे डाल दिए थे. सो दैट गाय वाज जस्ट लुकिंग एट ऑल द फोटोज एंड ही सॉ दैट 3 people were not there at all during that session. 3 people were not there. तो उसने ऐसे रैंडमली ऐसे थोड़ा और देखा, शॉर्टलिस्ट करते गया कि ऐसे 3 लोग ऐसे कट करके वो 3 लोगों में पहुंचा. देन ही टेक्स्टेड ऑल ऑफ देम सेइंग कि हे, आई नो यू हैव माई फोन, इफ यू डोंट गिव इट टू मी, आई हैव ऑलरेडी शेयर द फोटोज विद द ऑफिसर्स. So if you don't return my phone, they'll come and take it from you. So the 3 people you messaged, वो तुम्हारे peers थे कि कोई random, मतलब Yep. तुम्हारे एज के जो interns थे? Correct. सब हमारे एज के ही थे. So this guy was a couple of years older than us. ऐसे सब 24 के अंडर ही थे, but हम लोग थोड़ा यंग थे. वो थोड़ा 2-3 साल बड़ा था. He was हमारे एज से बड़ा था थोड़ा. तो he messaged all 3 of them. 2 of them said, what are you saying? We don't know about this. हमको पता ही नहीं, तो क्या बोल रहे थे, कुछ चाहिए, जो भी करना है कर ले. थर्ड गाय लाइक, मैं नहीं दे, मैम अभी पुलिस को मत बुलाओ, अब ऐसे तुमको कैसे पता. तो फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड वाज, हाउ डिड यू नो, तेरे को कैसे पता चला कि मेरे पास फ़ोन है.
तो इसको पता चल गया कि इसके पास ही फ़ोन है. देन ही शेयर्ड ऑल द फोटोज़ कि यू आर द वन मिसिंग फ्रॉम हियर, यू वरंट देयर एट ऑल. तो ऐसे ऐसे किया, पुलिस का FIR भेजा. एंड देन फाइनली आफ्टर 2 months ये बंदे ने उसको फ़ोन कोरियर किया. Can you imagine this? He literally figured the entire investigation through all the photos that we clicked. वो तेरा ऑनलाइन स्कैम भी यही सॉल्व कर देता, तेरे पैसे आ जाते भाई. नो बट एन इंटर्न स्टोर इट बेसिकली फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली. Probably was from a well-to-do family. I don't know much about him. But yeah, उसके बाद में कुछ एक्शन लिया उसके ऊपर? we didn't do anything because he was from some other state itself. अदर स्टेट ओनली. Yeah. So we were like, ठीक है. And he had left the organization. After a couple of months, जब ये सब उसके बाद से he had left the organization. So this guy basically texted him, if you don't return it, I'll do this. But if you return it, I won't tell it to anyone. I won't take any actions. Just return it. I don't want to spoil your name. Which was a very good thing to do. I wouldn't have done that. I would have screwed him up totally. But this guy was a better person than me. So probably he just let him go. बेटर पर्सन क्या भाई, भगवान का आदमी था. भगवान भाई फरिश्ता. किसी और को, कोई देसी मॉम को पता चलता ना ये 2 महीना से आईफोन लेके बैठा मेरे बेटे का, खचाक मार दी. Okay guys, I think we have spoken a lot. Thank you for bearing with us. This is our first episode. Hope you guys liked it and we'll be back soon. Hopefully we will be back soon. For how long we don't know.